G. The topic for today is resolution, as discussed earlier. We are going for that, and now we are going to start our last lecture of resolution of partnership. And the question which is in front of you, that is question number 5, October November 1832 का ये question है, and not a difficult question. We know the track, we know how to handle these questions, we know the procedure of resolution of partnership, and we will continue with that. So land and building is given, motor vehicle is given, machinery is given in the question. There are 3 partners and their ratio, profit sharing ratio is 4:3:1, means 4/8, 3/8 and 1/8. So land and building, motor vehicle, machinery, current assets, then inventory, trade receivables, capital and liabilities में current account है आपके, capital account है. Current accounts are transferred to the capital accounts when there is dissolution of partnership. When the business is going to close, the current accounts are going to be transferred to the capital account. Non-current liabilities हैं 10% loan from Bina से हमने लिया है 1 लाख का. Bina is basically the partner. So this loan is either supposed to be repaid or will be transferred to their capital, to his capital account. Current liabilities, trade payables दिए हुए आपको, total liabilities आ जाएंगी. The following assets were sold for cash: land and building, machinery, inventory. Angela took a motor vehicle at an agreed valuation of 20,000. Bina took the remaining motor vehicle at an agreed valuation of 13,000. An amount of 40,500 was received from trade receivable in full settlement of their accounts. An amount of 25,000 was paid to trade in full settlement of their accounts. A decision cost was 2,300 were paid from the bank account. Prepare realization account, prepare capital accounts, and prepare the current account, current account कह रहा हूँ, बैंक अकाउंट एज डिस्कस्ड अर्लियर. तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमने इसको उस तरीके से ही सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने आपको जो है वो बताया है. तो हम उस तरीके से इसको लेकर चलेंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सारे, आपने ये जो पास पेपर क्वेश्चन है ये सब आपने कर लेने. वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. इट्स रादर एन इजी चैप्टर. तो हम देखते हैं इसको क्वेश्चन को और स्टार्ट करते हैं. हम पहली एंट्री हम क्या पास करते हैं आपको पता ही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. आई एम नॉट गोइंग टू पास द एंट्रीज नाउ टुडे. आई एम नॉट गोइंग टू पास द एंट्रीज टुडे. यू आर गोइंग टू पास द एंट्रीज. So pass the entries, or I will pass the entry in a different manner. Rather than on working on paint shop, I will pass the entries in the whiteboard because I'm going to rub the entries again and again. So the first entry is going to, क्योंकि entry तो आपको पता है, आपने क्वेश्चन पेपर में आपको इकट्ठा ही बनाना पड़ सकता है, यानी पेपर में आपको कंबाइंड क्वेश्चन जो है वो करना पड़ सकता है. आपको हो सकता है कि एंट्रीज पास करनी पेपर में जो है वो पास ना करने की जरूरत ही ना पड़े. तो रियलाइजेशन अकाउंट हम क्या हो गया, चल नहीं रहा सही. मिस कर रहा है थोड़ा. रियलाइजेशन अकाउंट टू जो एसेट्स हैं सारे वो आप जो है वो क्रेडिट है वो आप कर देंगे. लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल. लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स. कितनी कितनी अमाउंट्स है जी उनकी? 150, 40, 60, 35, 45. 150, 40, 60,000 है. मेरे ख्याल 3 एसेट्स से शायद. मशीनरी भी था, मशीनरी भी है. हाँ जी जी. इन्वेंट्री और 150,000, 40,000, 60,000, 35 and 45. ओके ओके. इस तरह एंट्री पास करेंगे. दूसरी वो क्या होगी? लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे. ट्रेड पेबल टू रियलाइजेशन अकाउंट. याद रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर नहीं होगा, कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं होते. सेकेंडली, थर्ड पार्टी लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट. लोन नहीं आएगा, लोन को डायरेक्ट पे ऑफ कर देंगे, उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. अप टू यू, बिकॉज नथिंग हैज मेंशन्ड, सो इट्स बेटर दैट वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट टू लोन डायरेक्टली. 35 और 45,000 जो है बैंक डेबिट दिया होगा आपको, और नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है. बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक डेबिट दिया हुआ है, लोन है आपका, तो वो आप यूज करेंगे. तो ट्रेड पेबल्स देख लेते हैं हम कितने के दिए हुए.
ट्रेड पेबल्स 26500। तो जल्दी से पास कर ले, मुझे इसको मिटाना है क्योंकि मैं आगे चलूंगा। और एंट्रीज आर नॉट सपोज्ड टू बी पास इन द क्वेश्चन, यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर द पी अकाउंट्स। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको मिटाता हूं मैं। नेक्स्ट आपने ये लिख लेना आपने, क्योंकि आप लोगों ने रेशनल अकाउंट मुझे बना के दिखाना है ना, फिर मेरे पास तो एंट्रीज नहीं होंगी। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम एंट्रीज के बगैर करें। तो एंट्रीज हमने क्या करनी है जी, हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जो आप ट्रेड पेबल्स को पे कर रहे हैं, और बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो पैसे आपको मिल रहे हैं। तो rather than passing the entry separately for each asset, you can pass the combined entries from the assets. आप कर सकते हैं combined entries, not that difficult, हम कर लेते हैं। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और इन्वेंट्रीज, जो पैसे आए हैं उनको इकट्ठा आप ऐड करके हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ट्रेड पेबल्स को जो पेमेंट की पहले इसको कर लेते हैं, 25,000 पे कर रहे हैं हम, चलिए पहले इसको हम 5,000 को हम पे कर देते हैं। के बाद में चलो पहले पे कर देते हैं एक ही बात। बैंक से जो पैसे में आए हैं ऐड करें 2 लाख प्लस 55,150 प्लस 33,750, इन सबको आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करके बताएं कितने पैसे हमें रिसीव हुए हैं, और 40,500 भी ऐड कर देना है आपने फोर्थ एंट्री में जो है। 2 लाख प्लस 55,150 प्लस 33,750 प्लस 40,500 जो ट्रेड रिसीवेबल से मिले हैं आपको। प्रोविजन क्रिएट करेंगे या बैड डेट्स होंगे, दोनों ही सूरतों में आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कम हो जाएंगे, यानी यू विल कलेक्ट lesser amount from them. I got the calculator with me now, so I'm going to go for the total. 329,400. 329,400 जी, हमने कंबाइन एंट्री पास कर ली टाइम बचाने के लिए अपना। उसके बाद आपको आपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस शायद पे किए हों, वो देख लेते हैं हम। हाँ जी, वो हैं 2,300 के, वो आप पे करेंगे, तो उसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं। क्या होती है जी वो, रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इसको इकट्ठा ना कीजिएगा ट्रेड पेबल के साथ, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री हम अलग पास करेंगे ना। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, यानी कारोबार को क्लोज करने के जो खर्चे आए हमारे पर, वो हमने उससे एंट्री पास की है। अब जो टेक ओवर किए, उसने एसेट्स टेक ओवर किए, उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। एंजेला ने टेक ओवर किया एसेट एक मोटर व्हीकल एट एन एग्री वैल्यूएशन 20,000, तो इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, एंजेला कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरी बीना कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो भी एक एसेट टेक ओवर कर रहे हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। याद रखिएगा लायबिलिटी भी टेक ओवर की जा सकती है, इसकी एंट्री इसके उलट हो जाएगी, मतलब रिलेशन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे आपकी। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमें पता है कि हमने कोई इसे यूज नहीं कर रहे, तो हमें प्रॉब्लम उसमें नहीं आ रही है। तो वो कितने है जी, उसने टेक ओवर किया 13,000 का। सर ये 5 और 6 वाले हैं, ये जो 5 और 6 पॉइंट है, ये हम इकट्ठे नहीं कर सकते जिस तरह ऊपर वो किया था कैश रिसीव वाला? नहीं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि अलग अलग कर लें आप। अच्छा, ठीक है जी, ये मैंने सारी एंट्रीज पास कर ली है। अब मैंने बनाने रिलेशन अकाउंट, तो वो मैं वो बनाता हूँ आपके सामने। हम
तो एंट्रीज के थ्रू ही बनेगा, जारी बात आपको पता है। तो पहले हम तमाम एसेट्स ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट में, जो मैंने पहले एंट्रीज पास की थी। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, जितने एसेट बैलेंस शीट वैल्यूज पर जो एसेट दिए हुए हैं वो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे, और फिर आप उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बनाए आगे चलते हैं जी हम। तो सबसे पहले क्या है जी, एसेट्स ट्रांसफर करेंगे तो जो बैलेंस शीट वैल्यूज है उसके थ्रू ही आ जाएगा। एसेट्स डेबिट होते हैं तो रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड पे लिख देंगे आप सारे। 1,50,000 लैंड एंड बिल्डिंग है, वो एंट्री के थ्रू ही रहा है असल में, आप समझ ही रहे हैं ना मेरी बात। जी सर। ये साथ लिखाते जाएं। उसके बाद क्या है जी, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है जी, मोटर व्हीकल। व्हीकल बताइए कि कितने का दिया हुआ है। मशीनरी 40,000। 40,000 मशीनरी आ जाएगा जी। 60,000। जी उसके बाद इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री 35,000। Then we have trade receivables 45,000। उसके बाद क्रेडिट साइड पे आपका आ जाएगा जी। ट्रेड पेबल जी बिल्कुल, रेट पे लिख देंगे हम ओरिजिनल अमाउंट से, कितनी है 26,500। लिखी हुई है ना, जो लिखी हुई बैलेंस शीट के अंदर। ओके, जी जो हमने पैसे रिसीव किए हैं, बैंक डेबिट हो रहा है, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रिलेशन के नाम से लिख देंगे हम। ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं कि ये पैसे हमें कहाँ से आए हैं, एसेट से किए आपने। कितनी अमाउंट आई थी टोटल, 329,400। 329,400। तो सही रियलाइजेशन के नाम से लिख देंगे उसके अकाउंट में। हाँ जी, एसेट्स के नाम से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एसेट सोल्ड के नाम से भी लिख सकते हैं। नहीं, बैंक लिख सकते हैं। बैंक भी लिख सकते हैं, असल तो बैंक ही है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी हम, फिर रिलेशन अकाउंट क्या हो रहा है। रियलाइजेशन फिर कैश पे की है, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है बैंक हाँ, की वजह से 25,000। टेबल जो है वो हमने पे किए हैं। रिलेशन अकाउंट लिखा है वो गलत लिखा है मैंने, रिलेशन अकाउंट नहीं लिख सकते आप। जी हाँ, क्योंकि उसके अकाउंट में उसी का नाम बैंक तो नहीं आएगा है। ना, यस। बैंक लिखेंगे आप, बाकी एसेट्स आप लिख सकते हैं, वो ठीक है। ओके, उसके बाद रिलेशन एक्सपेंसेस आपने किए जी 2,300। और देखिए एंट्री कोई और, हाँ वो उसके पार्टनर। बाद एंजला कैपिटल अकाउंट है और बीना कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, एंजेला है 20,000। रस बीना 13,000।
ठीक हो गया जी, ये हमने इसको पास कर जी। लिया। एंट्री देख लेते हैं, हमने कोई मिस तो नहीं की है। 2000 वो भी हो गया, 20,000 भी हो गया, 30 वो हो गया। अब इसका अकाउंट क्लोज कर लेते हैं हम। टोटल कर लेते हैं, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, बताएं मुझे कौन साइड बड़ी आ रही है। साइड कौन सी बड़ी आ रही है आपको देखना पड़ेगा, ताकि प्रॉफिट लॉस में फाइंड हो सके हमारा। राइट साइड ही बड़ी होगी, 388900 आता है राइट साइड में टोटल। और डेबिट साइड का 357,300। हाँ, वो कम आ रहा है ना, तो उसमें माइनस कर दें। 31600 का प्रॉफिट आ गया है नहीं आपको, 31600 का प्रॉफिट आ गया, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो से। और वो कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स? उसमें ए है एंजेला, यानी कि उसमें बी है, और तीसरा उसमें आपका सी है। तो इनमें कितने कितने रेशो के हिसाब से, 4/8, 3/8 और 2/8 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मुझे बताएंगे क्या अमाउंट आ रही है। 15,800 आती है एक ही। 3/8 है मेरे ख्याल उसको, देख लें एक दफा, सवाल में आपके सामने सवाल तो ओपन हो। पहले का 4/8, पहले का 4/8 है, है। पहले का 4/8 है, फिर 3/8 और फिर 1/8 जी। जी 3/8 आ रहा है 11,850। और 3950। एक्चुअली इसकी एंट्री पास हुई है ना सर में, इसकी एंट्री क्या पास हुई, इसकी एंट्री पास हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है 31600 से, और क्रेडिट हुआ जी आपका एंजेला कैपिटल अकाउंट, और जो भी सी है, ये जो भी है, सॉरी असल में इससे एंट्रीज पास हुई है आपकी। और अमाउंट है 15,800, इसकी है जी आपकी 11,850, सी की आपकी है जी 3,950। ठीक है जी, ये हमने एंट्रीज पास कर दी। आपने क्या बनाना है जी, कैपिटल अकाउंट्स। तो बनाते हैं जी हम कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स की एंट्रीज के लिए हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मैं बनाऊंगा, इसको मैं यहाँ से बताता हूँ। कैपिटल अकाउंट्स में तीनों के कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे आपके, इसको इससे करके देखिए। ए का, सी का, इधर भी ए बी और सी का अकाउंट्स में बना लेते हैं। ये थोड़ा करीब हो गया है, कर लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन इसमें हम लिख लेते हैं इनकी। देखते हैं जी हम कितने क्वेश्चन में वापस जाते हैं। तो उनकी कैपिटल अकाउंट्स की बैलेंस है 1,75,000 और 25,000।
ठीक है जी, रिलेशन का प्रॉफिट आ जाएगा, कितना निकाला जी? 15,800 हमने निकाला हुआ, बल्कि बताइएगा जरा मुझे। 11,850 11,850 दूसरे का और 3,950। करंट अकाउंट की बैलेंस मैंने आपको बताया था कि वो ट्रांसफर करेंगे आप, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपको, और करंट अकाउंट की बैलेंस जो आपने ट्रांसफर करनी है वो भी दिए हुए हैं। एंजिला और बीना का क्रेडिट है, वो क्रेडिट पर ही आ जाएगा, उसका डेबिट 1,000 का, वो डेबिट पे आ जाएगा, 5, 4 और 1 के नाम से आ जाएंगे। इधर आ जाएगा जी आपका अकाउंट 5,000, 4,000, इसका आ जाएगा डेबिट साइड। एक एंट्री जो हमने पास करनी थी अभी, जो हमने पास नहीं की वो आप पास कर लिया, वो है पार्टनर लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 10% पार्टनर का लोन था ना एक, कौन से वाला, ये 10% लोन फ्रॉम बीना, इसकी हम एंट्री पास करेंगे। वो क्या होगी जी? लोन फ्रॉम बीना बैंक अकाउंट, हम डायरेक्टली इसको पे ऑफ कर देंगे लोन को, क्योंकि 1,00,000 का लोन था, इसकी एंट्री बैंक अकाउंट में चली जाएगी। इसकी जगह एक और एंट्री पास कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं लोन फ्रॉम बीना टू बीना कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और फिर उसकी कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली वो पे ऑफ हो जाएगा। ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसने बताया नहीं हुआ ना कि इधर आपने लोन से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है या आप डायरेक्टली पे ऑफ कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली पे ऑफ कर दूंगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर भी हो सकता है, और ट्रांसफर करूंगा तो फिर वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बिना कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर मैं लोन की अमाउंट भी या वो लिख दूंगा। ये नई एंट्री आई है, याद रखिएगा, वो एक्सपेंसेस उसके अलावा होते हैं, वो डायरेक्टली पे ऑफ कर देते हैं बैंक के नाम से, और उसमें लोन ही आएगा, क्योंकि लोन में ट्रांसफर नहीं किया हुआ रिलेशन अकाउंट में। बच्चे पूछते हैं सर रिलेशन अकाउंट की एंट्री नहीं होगी, रिलेशन टू बैंक नहीं होगी? नहीं, वो तब होती है जब उसको ट्रांसफर किया होता है, उसको थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को तो हम ट्रांसफर ही नहीं करते रिलेशन अकाउंट में, इसलिए रिलेशन की एंट्री के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा, हम उसे डायरेक्टली पे ऑफ कर देते हैं। तो हम पे ऑफ कर देंगे डायरेक्टली, वरना आप बिना कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी कर सकते हैं लोन के नाम से 1,00,000 रुपया, वो आपकी मर्जी है। टोटल कर देंगे जी इसका, इनके जो है वो बैलेंस किस नाम से क्लोज हो जाएंगे, आपको मैंने बताया था बैंक के नाम से, और किसी का बैंक वहां आ सकता है और किसी का बैंक डेबिट साइड पर भी आ सकता है। हम देखते हैं किस किस का बैंक किधर आ रहा है। 25,000 प्लस 3,950, तो टोटल इज 28,950, माइनस 1,000 करेंगे तो आ जाएगा 27,950। दूसरे का भी देख लेते हैं, दूसरे का भी सारा बैंक अकाउंट इस साइड पर ही आएगा। 1,00,000 प्लस 15,800 प्लस 5,000, टोटल इज 120,800। इधर भी आ जाएगा आपका 20,800, और यहाँ बैंक भी आ जाएगा 120,800। उसका भी टोटल कर लेंगे 75,000 प्लस 11,150 प्लस 4,000, 90,850 आ जाएगा उसका। तरीके से इसको हमने सॉल्व जो है वो कर लिया है बैंक अकाउंट से। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे आप, और वो डेफिनेटली आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो बैंक अकाउंट हम जो है वो इधर भी बना सकते हैं, जगह वैसे कम है क्योंकि रिलेशन अकाउंट ने काफ़ी जगह ले ली है। तो बैंक अकाउंट की एंट्रीज आपके सामने है, मेरे पास तो है भी नहीं, तो आप बैंक अकाउंट बनाएं और देखें वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। उसमें ये एंट्री भी आएंगी ना बैंक अकाउंट के अंदर, ये वाली एंट्रीज आपने लिखनी है, और ये एंट्रीज क्या होंगी मैं लिख देता हूँ। कैपिटल
अकाउंट 120800 बैंक अकाउंट बनाए आप लोग। उसमें याद रखिएगा पार्टनर लोन की एंट्री भी पास करनी है आपने। ये 0850 है। Check it out. जी 12080090 और 227950 सी का। एंट्रीज पास कर दी और आखिरी एंट्री जो थी वो भी पास कर देता हूँ मैं आपको। वो था बीना लोन अकाउंट। उसकी कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं आप, डायरेक्ट पे कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसने बताया नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट पे कर देंगे, क्या जरूरत है ट्रांसफर करने की। बिना लोन अकाउंट बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में इसकी एंट्री जाएगी ना। जो एंट्रीज बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रही हैं या बैंक अकाउंट में आ रही हैं वो सारी आप बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो उसको कर देंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो आंसर्स जो है वो आपके दोनों अकाउंट्स बैंक के दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी, क्लियर आ जाएंगी। तो अगर आप मुझे इसको सॉल्व कर लें। आपको बैंक का जो बैलेंस दिया उससे पहले वो लिखेंगे ना, बैंक का बैलेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर देखें आप तो डेबिट है 4500 से। हाँ टोटल इसका आता है 239600, क्रेडिट साइड पे आता है ना 239600, और डेबिट साइड पे बैंक जो आएगा जो पैसे मिले हैं आपको, आपने जो पेमेंट्स की हैं उसका आएगा, जो पैसे मिले हैं आपको वो आपको पता है 329400 आपको मिले हैं। और आपने जो पे किए हैं वो 25,000 है, 2300 है, और लोन भी है। ठीक है जी, तो ये आप इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे सवाल को। अब देख लीजिएगा इसको, फिर आप इसको चेक कर लीजिएगा सवाल आंसर में। मैं देख लेता हूँ, शायद कोई गलती ना हुई हो। 584 अक्टूबर नवंबर 1832 है, तो हम चेक भी कर लेते हैं द आंसर्स। सत्रह तक है ऐसे मेरे पास, 18 का नहीं है इसमें। आगे चेक कीजिएगा क्या गलती इसमें आ रही है। गलती आ रही है तो फिर देख लीजिएगा, ठीक है। ये गलती आ रही है, मेरा मैच तो नहीं कर रहा। डेबिट साइड है 333900 और क्रेडिट है 366900। क्रेडिट साइड पे 120 ओहो 120800 प्लस 0850 और प्लस आता है जी 2300। जी बताइएगा जरा मुझे, 366900 और दूसरी क्या है? एक क्रेडिट आ रही है 366900
ठीक है, और डेबिट है 333,900। 333,900। इसका मतलब रिलेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हमने निकाला है ना असल में, कुछ उसमें गलती हमने की है कहीं, तो इसको जो है ना हम कर लेते हैं। कौन सा पेपर ये? अक्टूबर नवंबर 18 था ना? जी, और वेरिएंट कौन सा था? 23 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 2। ठीक है जी, अक्टूबर नवंबर 18, वेरिएंट 23, क्वेश्चन 2। ओ, अभी नहीं आया। तो 18 जी, वेरिएंट 23, क्वेश्चन 2 है हमारा। रिलेशन का प्रॉफिट में गलती होगी हमारी। रिलेशन का प्रॉफिट तो ठीक आ रहा है, फिर कैपिटल अकाउंट में गलती होगी, यही आ रहा है हमारा रिलेशन का प्रॉफिट। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का में गलती है हमारी। 2 के बी में से मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना कहा ही नहीं था ना। 177850 कैपिटल अकाउंट है, 77850 आता है हमारा। हमने मेरे ख्याल है मोटर व्हीकल अकाउंट और जो थे ना करंट अकाउंट मोटर व्हीकल, वो ट्रांसफर नहीं किए हमने कैपिटल अकाउंट्स में, ये गलती हुई। यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट्स में जो उन दोनों ने मोटर व्हीकल टेक ओवर किए ना, एक 13,000 का और एक कितने का? 20,000 का। भी एंट्रीज थी, तो वो मोटर व्हीकल यहाँ पे आना था, वो हमने नहीं लिखा इधर। मोटर व्हीकल और एंजेला ने मेरे ख्याल 20,000 का लिए, लेकिन चेक करें, मुझे नहीं पता। हाँ जी, एंजेला का 20,000 और बीना का 13,000। ठीक है जी, तो अब यही फर्क आएगा ना, 33,000 का फर्क आ रहा है हमारा, वो कैपिटल अकाउंट के अमाउंट में से फर्क आ जाएगा आपका। अब इसका टोटल कर लें, अब आप क्या क्या आता है, वो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। 14800 आ जाएगा ए का। इसका तो वही रहेगा 27950 14800। ओके हो गया। 103,850 आ जाएगा बी का। अब आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। 103,850 नहीं आना चाहिए बेटा, अभी भी कुछ मसला मुझे लग रहा है इसमें। देखो ना, कैपिटल अकाउंट 75,000 से स्टार्ट किया उसने, जिसका बनाया उसने, तो वो बी का ही उसने बना के दिखाया। तो बी कैपिटल अकाउंट 75 से स्टार्ट किया, प्लस करंट अकाउंट 4,000 प्लस 11850। हम देखते हैं 4,000 भी लिखा है, 11850 भी लिखा है। सर वो तो उन्होंने माइनस किए 13,000 मोटर व्हीकल का, टेक ओवर किए, तो डेबिट साइड पे नहीं आएगा। हाँ, दोनों डेबिट साइड पे आ रहे थे, सही बात है, दोनों ही डेबिट साइड पे आ रहे थे जी। एंट्री मेरे सामने है नहीं और मेरे जेन से यार एक मुसीबत की। बस ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा फिर आप, ठीक है, इधर आ जाएंगे ना 20,000। ठीक हो गया। जी जी जी, ठीक है सर। खाना मेरा आ गया तो
और 13,000 आ जाएगा यूटिलाइजेशन। अब इसको आप ठीक कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। जी ठीक है सर। ओके फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।